أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو سبق ہم پڑھیں گے اس کا موضوع ہے اسم اور فعل۔ اسم ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، وہ کلمہ جو کسی شخص، کسی جگہ یا کسی چیز کا نام ہو اسے اسم کہتے ہیں۔ مثلاً عورت، شہر، اسلم، لاہور وغیرہ اسم کی کچھ اقسام بھی ہیں۔ اقسام کون سی ہیں؟ اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام، ایک اسم نکرہ اور دوسری اسم معرفہ۔ ٹھیک ہے، اسم کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اسم کیا ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے معنی کے لحاظ سے اسم کی اقسام۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسم نکرہ کیا ہے۔ اسم نکرہ وہ اسم جو کسی عام شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو اسے اسم نکرہ کہتے ہیں۔ مثلا لڑکا، کتاب، شہر، میدان، یعنی کوئی بھی عام چیز جو ہوگی وہ اسے ہم نکرہ کہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اسم نکرہ کو یعنی کسی عام چیز کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی عام چیز کا نام۔ اور اسم معرفہ کیا ہے؟ وہ اسم جو کسی خاص جگہ، کسی خاص چیز، کسی خاص شخص کا نام ہو اسے اسم معرفہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسم ہم نے پہلے پڑھا تھا، اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ اسم کی قسمیں کتنی، اسم کی اقسام کتنی ہیں؟ دو، ایک اسم معرفہ اور ایک اسم نکرہ۔ ٹھیک ہے، نکرہ عام چیز، عام شخص، عام جگہ کا نام ہے۔ جو بھی عام چیز ہوگی، عام شخص ہوگا، عام چیز ہوگی، عام کوئی نام، جیسے مطلب لڑکا ہے، کتاب ہے، میز ہے، کرسی ہے، یہ عام چیزیں ہیں نا، تو یہ ساری نکرہ میں آئیں گی۔ ٹھیک ہے، اور جو معرفہ ہوں گی وہ خاص ہوں گی، جیسے احمد یعنی کسی کا نام ہے تو وہ تو معرفہ ہی ہوگا نا، جس کا بھی نام ہوگا، میرا نام ہے، آپ کا نام ہے۔ اسی طرح قائد اعظم، علامہ اقبال، لاہور، فاطمہ جناح وغیرہ۔ ٹھیک ہے، اس طرح یعنی جو بھی خاص لوگوں کے نام ہوں گے وہ اسم معرفہ کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اسم معرفہ خاص چیزوں کا نام۔ ٹھیک ہے، خاص اشخاص کا نام، خاص جگہ کا نام۔ اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ چارٹ دیا ہوا ہے اسم معرفہ اور اسم نکرہ، تو اس میں سے ہمیں پہچاننا ہے، یہ سینٹینسز ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ ہم لاہور میں رہتے ہیں، اس میں معرفہ کون سا ہے یہ آپ بتائیں گے۔ اس میں معرفہ ہے لاہور۔ ٹھیک ہے، اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے، تو دارالحکومت ہے تو وہ تو اہم ہوا نا، تو پھر اسلام آباد کیا ہے؟ یہ معرفہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، میز کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی، اب میز تو کتنے ہی ہوتے ہیں، ہر گھر میں میز ہوتی ہے، کئی کئی میز ہوتے ہیں گھر میں، تو یہ تو پھر عام چیز ہو گئی۔ ٹھیک ہے، نکرہ چیز ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہ قلم اچھا ہے تو یہ قلم ہے، تو قلم تو بہت سارے ہوتے ہیں تو اس لیے قلم بھی نکرہ ہو گیا۔ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر، تو علامہ اقبال تو ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو علامہ اقبال جو ہے خاص ہے، تو یہ ہو گئے اسم معرفہ۔ ٹھیک، دریا میں پانی زیادہ ہے، اب دریا تو کتنے ہی سارے ہیں، پانی بھی ہر جگہ مل جاتا ہے، تو پھر یہ دریا بھی عام ہے اور پانی بھی۔ ہاں، اگر کسی دریا کا نام لیا جاتا ہے تو پھر وہ خاص ہوتا ہے، وہ اسم معرفہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر عام دریا ہے تو وہ دریا عام چیز ہے۔ ٹھیک ہے، نکرہ چیز۔ درخت پر پرندے بیٹھے، تو درخت بھی بہت سارے ہوتے ہیں، پرندے بھی بہت سارے ہوتے ہیں، کوئی خاص درخت ہوتا تو پھر وہ
मारफा होता, लेकिन ये आम दरख्त है तो इसको हम नकरा कहेंगे। मोर जंगल में नाचा, अब इसमें मोर जो है वो मारफा है, क्योंकि मोर हर हर जानवर को तो हम मोर नहीं कहते ना, तो इसमें जो मोर होगा उसको हम कहेंगे कि ये, क्योंकि ये स्पेशल मोर था, नाचने वाला मोर है जंगल में, तो ये जो होगा ये मारफा होगा। उस्ताद कमरे में नहीं, अब क्लास में हर क्लास में उस्ताद होते हैं, स्कूल में बहुत सारे उस्ताद होते हैं, तो इसलिए जो उस्ताद है, अगर किसी उस्ताद का नाम लिया जाता तो वो मारफा होगा, लेकिन क्योंकि उस्ताद है आम, यानी फिर इसको हम आम में ही लेंगे, यानी नकरा। ठीक है, कोई खास नहीं। अच्छा, बाग में फूल है, तो बाग ये भी कोई किसी बाग का नाम नहीं है, आम सा बाग है, तो फूल भी आम सा है। अगर किसी फूल का नाम होता तो फिर हम कहते हैं हाँ ये स्पेशल फूल है, तो इसलिए फिर बाग भी नकरा है। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, अब आगे आ गया फेल। ठीक है, आपको पता है हमने पहले पढ़ा है कि फेल जो होता है किसी काम के करने या होने को जाहिर करता है, उसे हम फेल कहते हैं। यानी वो कलमा जिससे काम का करना या होना जाहिर हो उसे फेल कहते हैं। मसलन तोड़ा, गाया, पिया, खाया, गाना, सोना। ठीक है, इस तरह फेल की जो है ना 3 अकसाम। ठीक है, यानी इस तरह, ये तो हमने तारीफ बताई ना, तो फेल की हमने पहले पढ़ा कि फेल की तारीफ क्या है, कि फेल किसे कहते हैं, यानी किसी काम के करने को। ठीक है, यानी ऐसा कलमा जिसमें किसी चीज का या जिसमें किसी काम का करना या जाहिर होना पाया जाए। ठीक है ना, काम का करना या होना जाहिर। ठीक, इसी तरह फेल की 3 अकसाम है, जिस तरह हमने कल में अकसाम पढ़ी, इसम की अकसाम पढ़ी, इसम की 2 अकसाम थी। अब हमने पढ़नी है फेल की अकसाम। तो फेल की 3 अकसाम, एक माजी, नंबर 2 फेल हाल, और नंबर 3 फेल मुस्तकबिल। अब हम देखेंगे कि माजी कौन सा होता है। फेल माजी, ऐसा फेल जिसमें गुजरा हुआ जमाना पाया जाए उसे फेल माजी कहते हैं। मसलन लिखा, पढ़ा, आता था, जाता था, जा रहा था। ठीक है, ये फेल माजी। ठीक है, फेल माजी की थोड़ी सी और जो है मिसालें देख लेते हैं। वाहिद, वाहिद ने सबक पढ़ा, वाहिद लड़के का नाम है। ठीक है, वाहिद ने सबक पढ़ा, समीना बर्तन साफ कर रही थी, असलम ने खत लिखा था, लड़के किताब पढ़ते थे। ये सारे माजी की मिसालें हैं। ठीक है, अच्छा फिलहाल क्या, वो फेल जिसमें मौजूदा जमाने में काम का करना या होना जाहिर हो उसे फेल हाल कहते हैं। मसलन खाता है, पीता है, खेलता है, दौड़ता है, चलता है। यानी जिसके साथ है लगा होगा ना, जिस सेंटेंस में है इस्तेमाल होगा, तो वो होगा हाल। ये अभी प्रेजेंट जिसको हम कहते हैं, इंग्लिश में प्रेजेंट कहते हैं, उर्दू में हाल कहते हैं। तो हाल की कुछ और मिसालें दी हुई है कि शाजिया कुर्सी पर बैठी है, मैं वर्जिश करता हूँ, मेहमान आम खा रहे हैं। ठीक है, यानी जिस सेंटेंस के, जिस जुमले के आखिर में है आएगा उसको हम फेल हाल कहें। ठीक है, और जिस जुमले के आखिर में था आएगा, यानी गुजरे हुए जमाने में जो काम किया गया हो उसको हम कहेंगे फेल माजी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फेल मुस्तकबिल कौन सा है। वो फेल जो किसी आने वाले जमाने में, यानी जो काम हम कल करेंगे आने वाले कल में करेंगे। ठीक है ना, किसी काम का करना या होना जाहिर करे, फेल मुस्तकबिल कहलाता है। मसलन वो जाएगा, हम आएंगे, हाँ, वही खत लिखेगा, मतलब जो हम काम आने वाले वक्त में करेंगे ना, वो होता है फेल मुस्तकबिल। के ये फेल मुस्तकबिल है जिसमें आने वाले वक्त में किसी काम का होना या करना जाहिर किया जाए। ठीक है,
अच्छा, ये फेल मुस्तकबिल की कुछ मिसालें हैं। फातिमा स्कूल जाएगी, हम इस्लामाबाद जाएंगे, मैं शाम को किताब पढ़ूंगा, दर्जी कल ये लिबास तैयार करेगा, कल सुबह अहमद हमारे घर आएगा। तो ये होगी मिसालें फेल मुस्तकबिल की, ठीक है। अच्छा, अब ये है मशक, जो कि आपके करने का काम है। इसम किससे कहते हैं? इसलिए आपको पता है कि किसी चीज, किसी शख्स या जगह के नाम को इसम कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने इसका जवाब अपनी कॉपी में लिख लेना है। अब ये है कि हर चीज, शख्स और शहर का नाम इसम है, ठीक है। कोई सी 5 चीजों के नाम, 5 अशखास के नाम और 5 शहरों के नाम, ये आपने लिखने हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये इसी तरह से अपनी कॉपी में कॉलम बना के इसमें आपने लिखने, ठीक है। चीजों के नाम लिखने हैं 5, 5 अशखास के नाम और 5 शहर के नाम। ये आपकी होमवर्क हुआ, ठीक। अच्छा, अब ये सवाल है कि मैनी के लिहाज से इसम की कितनी किस्में हैं? तो अभी मैंने बताया कि मैनी के लिहाज से इसम की 2 किस्में हैं, तो इसका जवाब आपने ये लिखना। अब सवाल नंबर 4 है, इसम नकरा और इसम मारिफा से क्या मुराद है? इसम नकरा से क्या मुराद है? अभी मैंने बताया कि किसी आम चीज, शख्स या जगह का नाम को इसम नकरा कहते हैं, ठीक है। और इसम मारिफा किसे कहते हैं? इसका आपने जवाब लिखना है कि किसी खास शख्स, खास जगह या खास चीज का नाम जो होता है उसे इसम मारिफा कहते हैं, ठीक है। इसका जवाब भी आपने अपनी कॉपी पे लिखा, ठीक। अच्छा, अब ये कुछ मिक्स दिए हुए हैं, इसम दिए हुए हैं, ठीक है। इसम नकरा और मारिफा को इसमें से आपने अलग अलग करना है। इसका भी आपने स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके इस तरह से आपने कॉलम बना, ठीक है। एक साइड पे इसम नकरा, एक साइड पे इसम मारिफा लिखना है और इनमें से आपने अलग करना है। लाहौर क्या है, नकरा है या मारिफा है, उस खाने में आपने लिखना है, ठीक है। अगर मारिफा है तो मारिफा के खाने में लिखना है। लड़के नकरा है या मारिफा है, उस खाने में लिखेंगे, ठीक है। अगर नकरा है तो नकरा वाले खाने में। औरतें क्या है, इसको हम देखेंगे कि ये मारिफा है या नकरा, फिर हम इधर इसको लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। फातिमा, कलम, मोहम्मद अली जिन्ना, मोर, बच्चे, फूल, ठीक है। तो इस कॉलम को आपने देखना है और फिर इसमें से अलग अलग करके आपने इधर लिखना, ठीक है। इसी तरह से 2 कॉलम बनाने हैं और उसने आपने लिखा, ठीक है। अच्छा, अब ये अगला सवाल है, फेल से क्या मुराद है और इसकी कितनी अकसाम है? फेल से क्या मुराद है? मैंने बताया कि किसी वो कलमा जिसमें किसी काम का होना या करना जाहिर हो, ठीक है, उसको फेल कहते हैं। और फेल की अकसाम कितनी है? 3 अकसाम। फेल की 3 अकसाम है, ठीक है। माजी, हाल, मुस्तकबिल, ठीक हो गया। तो ये इस सवाल का जवाब भी आपने मेरी कॉपी में लिख लेना है। जुमलों में, अच्छा, जुमलों में फेल चुनकर अलग करें। अब ये आपका क्वेश्चन, आपका होमवर्क का है कि आपने ये जुमले देखने हैं, ठीक है। ये जुमले लिखने हैं और इसमें से जो फेल है वो आपने अलग कर, ठीक। मैं कलम खरीदूंगा, तो इसमें फेल क्या हुआ? खरीदूं, यानी खरीदना, इसमें है फेल खरीदना, ठीक। असलम ने खत लिखा, इसमें लिखा फेल है। मैं सुबह सवेरे जाता हूँ, इसमें जाता फेल। फातिमा स्कूल जाती है, इसमें जाती है फेल है। चिड़िया दरख्त पर बैठी है, इसमें बैठी है फेल, ठीक है। खरीदूंगा फेल मुस्तकबिल, खत लिखा फेल माजी, सवेरे जाता हूँ फेल हाल, जाती है फेल हाल, बैठी है फेल हाल, ठीक है। इस तरह से आपने, अच्छा, अब ये एक हमारा है सवाल नंबर 8 है कि फेल माजी, फेल हाल और फेल मुस्तकबिल की दो दो मिसालें दीजिए। तो इसमें आपने 2 2 मिसालें दी, ठीक है। अब ये आपने खुद कर, अभी मैंने इतना आपको समझाया, अब मैं देखूंगी कि आपको कितना समझ आया। अब इसमें आपने 2 2 जो है ना फेल माजी के लिखने, ठीक है। 2 फेल माजी इसमें लिखने हैं, इसमें 2 फेल हाल लिखने हैं और इसमें 2 फेल मुस्तकबिल लिखने, ठीक है। अच्छा, अब ये एक और सवाल है, सवाल नंबर 9, नीचे दिए गए जुमलों को गौर से पढ़ें और मिसाल के मुताबिक फेल को जमाने से मिला। अच्छा, ये बहुत ही आसान है, ये हम अभी कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपने अपनी कॉपी पे भी करके रखना है, ठीक है। आपके पास पूरा वीक होता है, आप आराम से एक एक सवाल भी एक दिन करेंगे तो पूरे
हफ्ते में अपना पूरा काम कर लें, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहला सेंटेंस जो उन्होंने दिया है, मैं अखबार पढ़ती हूँ, इसको हमने देखना कि इसका जमाना कौन सा है, कौन सा फेल है ये, हूँ है ना आखिर में, पढ़ती हूँ तो ये फेल हाल। अब दूसरा सेंटेंस है मैं अखबार पढ़ता था, तो ये गुजरा हुआ जमाना हो गया ना, तो इसमें था लगा हुआ तो ये फेल माजी है, तो इसको हम इधर फेल माजी के साथ जोड़ दें, ठीक है। इसमें आपने लाइन लगानी है, माजी के साथ जोड़ देना है। मैं अखबार पढ़ूंगा, ये है मुस्तकबिल के साथ, तो फेल मुस्तकबिल इधर है, इसको हमने इधर लाइन खींचनी है, फेल मुस्तकबिल के साथ जोड़ देना। एमन स्कूल चली गई थी, ये भी फेल माजी, तो इसको हमने फेल माजी के साथ जोड़ देना है। हमायूं खत लिखता है, ये फेल हाल है, तो इसको हमने फेल हाल के साथ लिख देना है, ठीक है। समझ आई? इस तरह से ये आज का हमारा लेसन जो है मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि आपको मुश्किल नहीं लगा होगा। तो अभी मैं दुआ पढ़ लेती हूँ, फिर मैं रिकॉर्डिंग बंद करूंगी, फिर जो भी क्वेश्चन पूछना होगा तो आप फिर बाद में पूछ लीजिए, ठीक है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।